Good morning, dear students. Welcome to your class. Dear students, today we are going to start a very interesting chapter, that is electric current and its effects. So, let's get started. In our previous class, we have studied about electric cell. Electric current flows from one terminal of the cell to another through a circuit. And there are few materials that allow electric current to pass through them, while there are some materials which do not allow electricity or electric current to pass through them. They are known as insulators. So now in this chapter we are going to study about electric circuits, their components and the simple symbols, heating effect of electric current and its application, then magnetic effect of electric current and its application. Okay, so let's begin our lesson. Now in class 6th we have learned about sources of electricity, electric current and electric circuits. Okay, so what is electric circuit? Electric circuit is the closed path through which an electric current can flow is called electric circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. ओके, सर्किट जो है इट कैन बी क्लोज्ड और इट कैन बी ओपन. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं या सर्किट के अंदर प्रेजेंट होती हैं टू फॉर्म अ सर्किट इज़ नोन एज कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज़ इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी. इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट जहाँ से होती है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल सेल. ओके, इसमें या तो एक सेल या टू मोर देन टू सेल कैन बी कनेक्टेड. जब एक इलेक्ट्रिक सेल प्रेजेंट होता है तो उसको हम सेल कहते हैं. व्हेन देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इट फॉर्म्स अ बैटरी. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब. अब एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब भी होता है. ओके, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस दैट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. तो इस बल्ब से हमें ये डिनोट होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर बल्ब ग्लो करता है इट मीन्स करंट इज फ्लोइंग. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक स्विच. एन इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज्ड टू क्लोज और ब्रेक द सर्किट. अगर इलेक्ट्रिक करंट हमें स्टॉप करना है फ्लो करना तो हम स्विच ऑफ कर देंगे, और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहे सर्किट के अंदर तो हम स्विच को ऑन कर देंगे. एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कनेक्टिंग वायर्स. कनेक्टिंग वायर्स जो होती हैं वो क्या करते हैं? दे कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स. ये सारे कंपोनेंट्स किससे कनेक्टेड होते हैं? ऑब्वियसली कनेक्टिंग वायर से. और जो कनेक्टिंग वायर है वो ऐसे सब्सटेंस मटेरियल से मिलके बनती है विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम. ओके, वी विल स्टडी अबाउट different symbols which are assigned to these component. Okay, now सबसे पहला जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल देखो क्या है? वी डिनोट इलेक्ट्रिक cell by one bigger line which denotes positive terminal and the smaller line which denotes the negative terminal. Okay, and next is electric bulb. Electric bulb is denoted by W. Okay, or you can say M. Okay, and a circle around it. Okay, this is the symbol of electric bulb. Okay, now if we want to denote this, you have to draw a circuit diagram for this cell and a bulb. How will you draw it? You can draw, firstly you have to draw electric cell, then you will draw the symbol of bulb, and then you will connect it through connecting wires. Okay, now you can join them together.
basic circuit diagram of your electric circuit in which cell is connected to the bulb. Now you can also show direction of current flow with arrowheads. Okay, you can draw your arrows like this and you can show that the electric current is flowing in the circuit from the positive terminal to the negative terminal. Is it clear? So now you can say that circuit diagram is a schematic representation of the electric cell using symbols for various components of a circuit. Okay, तो आप जो ये डायग्राम, इससे आपको ये पता चल रहा है it makes the circuit convenient to represent. Okay, now electric circuit में जो next component present होता है that is switch. Okay, switch plays a very important role. Okay, क्या रोल होता है switch का? Electric switch makes the circuit open and close. Now suppose when your cell is connected to the bulb and we switch on the switch, happens, the circuit gets complete and your circuit is complete and your bulb will glow. And if we switch off it, the circuit will be broken and the bulb will not glow. So electric switch makes the circuit open or closed. Now for example here you can see the switch is open. Okay, अगर वो open है तो bulb will not glow क्योंकि यहाँ पे switch off है. It means switch open है. जब वो सर्किट ओपन है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो रहा, मींस पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल से बल्ब तक नहीं जा रहा करंट, सो इट विल नॉट ग्लो. बट अगर हम स्विच को ऑन कर दें तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब तक चला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट एंड द बल्ब विल glow. It will start glowing. So this shows that switch in the electric circuit plays a very important role. और हम switch को two lines और जिसपे आगे two circles लगे होते हैं उससे हम denote करते हैं. Okay. Now if we will see an electric bulb, in electric bulb what happens, एक आपने देखा होगा फिलामेंट प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, बिल्कुल फाइन थिन वायर प्रेजेंट होती है विच इज़ नोन एज फिलामेंट. तो अब देखो इसमें फ़्लो इलेक्ट्रिसिटी का मैंने शो किया है, इसमें आपको ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ़्लो हो रहा है और वो कैसे ग्लो कर रहा है बल्ब. नाउ इफ़ दिस फिलामेंट गॉट ब्रोकन अप, तो मीन्स आप लोग कहते हो ना बल्ब फ्यूज़ हो गया, फिर उसमें क्या होता है, बल्ब फ्यूज़ क्यों होता है, ये जो फिलामेंट होता है इट गेट्स ब्रोकन अप और ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता, इसलिए बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता, सर्किट ब्रेक हो जाता है. ओके, अब ये फिलामेंट क्या होता है, ये एक कॉइल्ड टंगस्टन एलिमेंट का बना होता है एंड इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. नाउ हेयर वी कैन समराइज इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे डिनोट करते हैं, one bigger line, one smaller line. Next is battery. Battery में two cells connected होते हैं, तो one bigger line, one smaller line, one bigger line, one smaller line. Okay. Next is switch. Switch on, switch off, दोनों आपको denote कर दिए. Then for the bulb, बल्ब का डायग्राम बेटा आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, M बना के उसके अराउंड सर्कल बनाएंगे, आप वैसा ही बनाओगे. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर एक ये रेक्टेंगल हो गया एंड टू स्लीपिंग लाइंस दैट इज़ कनेक्टिंग वायर शो होते हैं इससे, एंड लास्ट वन इज़ कनेक्टिंग वायर. उसमें जस्ट आप लोगों को एक स्लीपिंग लाइन से कनेक्टिंग वायर्स शो करोगे.